Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 7th Maths, and our chapter is Visualizing Solid Shape. Student, yesterday we have completed our chapter Symmetry. I hope you all are completed this chapter in your notebook. Now today we have started our new chapter, that is Visualizing Solid Shape, because this chapter is very easy, so we can start this new chapter for previous. Okay, हम इसको पहले start कर रहे हैं because this is very easy chapter, and in your daily routine life you can see so many solid shapes. Okay, and when you talk about every object in this universe has got some shape. Some have regular shape and some have irregular shape. Now what is irregular shape? While there are other that have combination of different shapes. A stone on the river side, कई बार आप river side जाते हो, वहाँ पर जो stones रहते हैं that are irregular shape. Okay, whereas a man made bricks, जो हम बनाते हैं bricks बनाइए आपने, कोई book बनाई, book भी आपकी rectangular shape में होती है, may have a rectangular shape, but they all have one thing in common, they all occupy the space. क्या लेता है? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ओके, वी कैन सी, टच एंड फील देम फ्रॉम ऑल द साइड्स. हम उसे देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं. ओके, अगर आप स्टोन की बात करें, अगर आप ब्रिक की बात करें, अगर आप बुक की बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं, जो भी सॉलिड शेप्स हैं, अगर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सी, टच एंड फील देम फ्रॉम ऑल द साइड्स. इन अदर वर्ड, दे ऑल हैव 3 dimensional, means they have length, breadth and depth also. Okay, but when we draw a square and a rectangle in our notebook, then it have only 2 dimension, and we cannot touch them, and when we cannot feel them. ओके, वो हम खाली क्या करते हैं, हम उसे खाली एक फिगर बना देते हैं. हमारी जो बुक है उसमें हम एक शेप बना रहे हैं, दैट इज स्क्वायर, दैट इज रेक्टेंगल, दैट इज सर्कल. बट इफ़ आई टॉक अबाउट अ बॉल, एंड अगर आपने एक कॉपी के पेज पर सर्कल बनाया है और बॉल बनाई है, बॉल है आपके पास में, सो विच यू हैव फील, विच यू हैव टच बॉल, यू हैव टू टच एंड यू हैव फील द बॉल. Okay, understand? So this is the difference between 3D shape and 2D shape. What is 2D shape? Which we can only see, but in 3D shape we have touch also and feel also ki yes, this is a ball, this is a book, this is a brick, or this is a stone. Okay, understand? So this is the difference between 2D and 3D shape. In other words, they all have 3 dimensional, that means they have length, breadth and height also. Okay, or we can say that they have length, breadth and depth also. Okay, okay student, so when we and every solid shape object process these 3 dimension, and so it is also referred to as 3D object. So हम इसे क्या बोलते हैं? 3D object बोलते हैं. Shapes such as triangles, rectangles, circle or square etc. could be drawn on the paper, which incidentally has only 2 dimensional, means they have only length and breadth only. Understand? They have only length and breadth. Understand? So they have only length and breadth, and hence this shape are referred to as 2D shape. These 2D shapes are not solid, we can draw them and see them but cannot hold them as they have no depth. बिकॉज कोई इनमें डेप्थ नहीं होती, कोई इनमें हाइट नहीं होती. सो हम इसे खाली देख तो सकते हैं, बट उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम होल्ड नहीं कर सकते. ओके, अंडरस्टैंड? सो आप इन फिगर्स को देखिए. दिस इज देयर आर सम क्यूबॉइड, सिलेंडर, पिरामिड एंड स्क्वायर. आपने डाइस देखा है आपके घर में. ओके, कोन एंड क्यूब ऑल्सो. सो दे हैव द शेप विच वी हैव which we have touch, feel and see, that are called 3D shape. Okay, understand? So try to identify some object shape like each of these.
by a similar argument, we can say figure drawn on paper which have only length and breadth are called two-dimensional figure, and we have also seen some two-dimensional figure in the earlier classes. ओके हमने बहुत सारे टू डायमेंशनल फिगर देखे हैं, डेट इज सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल एक्सेट्रा, that are called 2D shape. Okay, now what is the difference between 2D shape and 3D shapes? So when we talk about 2D shape, so they have only length and breadth. And what about 3D shape? 3D shape we have touch, feel and see also. Okay, so these are called 3D shape. And in 3D shape, what is the common thing? They have length, breadth and height also. Okay, faces, edges and vertices. What is face, what is edge and what is vertices in 3D shape? So see, if I talk about a cube, any cube, so here vertex जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सो ये ब्लैक डॉट्स, दिस इज कॉल्ड द वर्टाइसेस. सो टोटल वर्टाइसेस इन अ क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 and 8, टोटल 8 वर्टाइसेस आर देयर. ओके, नाउ एजेस जो डॉटेड लाइन दिख रही है, डेट इज कॉल्ड एजेस. सो हाउ मेनी एजेस यू कैन सी हियर? सी 1 2, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, total 12 edges are there. Okay, total 12 edges are there. And how many faces? Faces means आपके पास में, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल के किस किस स्पेस को आप टच कर सकते हैं, डेट इज फेसेस. सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस मीन्स टोटल. सी हियर, अगर हम बात करें, दिस इज वन फेस, दिस इज अवर वन फेस. ओके, जैसा एक यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही इधर की साइड एक होगा, 2 3 4. ओके, वैसे ही नीचे होगा 5 एंड ये वाले के पीछे की साइड भी एक फेस होगा, डेट इज 6. Okay, so solid having some faces, some edges and some vertices also. Okay, understand? So the 8 corner of a cube are its vertices, the 12 line segments that form the skeleton of the cube are its edges, and the 6 flat square surfaces that are the skin of the cube are called its faces. Okay, understand? So see here, faces, edges and vertices. आपको यहाँ पर देख करके बनाना है. यहाँ पर कितने फेस दिख रहे हैं? यहाँ पर टोटल आपको 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 वर्टाइसेस हैं. ओके, नाउ हियर सी हियर इन द प्रिज्म, और आपको इस टाइप का जो ट्रेंगुलर पिरामिड दिखता है, इसमें आपको कितने फेसेस दिखते हैं, कितने वर्टाइसेस होते हैं और कितने एजेस होते हैं? सो हियर 4 फेसेस यू कैन सी एंड 4 वर्टाइसेस यू कैन सी. ओके, 1 2 3 एंड 4 वर्टाइसेस आपको दिख रहे हैं. ओके, सो हियर आपके पास में एजेस कितनी होंगी? सो हाउ मेनी एजेस यू कैन सी हियर? 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 एंड 4 आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? तो हमारे पास टोटल एजेस कितनी है? टोटल एजेस हमें दिख रही हैं 1 2 3 4 एंड 5 एजेस आर देयर. ओके, सो सिमिलरली आपको यहाँ पर लिखना है, कैन यू सी दैट द 2 डायमेंशनल फिगर कैन बी आइडेंटिफाई एज द फेस ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप. फॉर एग्जाम्पल, अ सिलेंडर हैज़ 2 फेसेस which are circle and a pyramid shape like this has triangular as its face. जो पिरामिड होता है उसके फेसेस कैसे होते हैं? ट्रेंगुलर, जो हम टच कर सकते हैं. ओके, we will now try to see how some of these 3D shapes can be visualized on 2D surface, that is on paper. अब अगर हम पेपर पर बनाते हैं कोई 3D शेप, बच्चों आपके घर में जो केक सबके घर में आता है, जब आप मार्केट से केक खरीद कर लाते हैं तो वो एक बॉक्स में बंद होता है. ओके, जब आप बॉक्स ओपन करते हैं, अगर आप पूरा बॉक्स अच्छे से ओपन करेंगे, सो उसकी नेट किस टाइप से दिखेगी? कुछ इस टाइप से उसकी नेट दिखेगी. ओके,
अंडरस्टैंड। जब उसे हम बॉक्स पूरा बना लेंगे तो अगेन वो इस टाइप से बन जाएगा, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द नेट, दिस इज कॉल्ड द नेट. A net is a sort of skeleton outline in 2D which when we fold it result in a 3D shape. ओके, सो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3D शेप मिलेगा. ओके, अंडरस्टैंड. सो व्हेन वी फोल्डेड एनी नेट देन वी गेट एन result, we can get a net. Okay, so what is the net? Nowadays most of the things that we buy from shop come in attractive packet or boxes of different shape. These boxes are solid of various shape. To make these boxes the manufacturing must know the net of this shape. Okay, so think of closed cubical packet. If you open this packet you will get a net of नेट एज शोन अबोव. जिस टाइप से हमें नेट दिखी थी इस टाइप से हमें नेट वो दिखेगी. ओके, अंडरस्टैंड. नॉट द पार्ट विच आर कलर्ड. अब हम जो देखते हैं यहाँ पर जो पार्ट आपको दिख रहे हैं डेट इज़, आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो ऊपर से आपको छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, इन डार्कर शेड यू ऑफ ब्लू. तो हम क्या करेंगे, आर यूज फॉर पास्टिंग द साइड टुगेदर. हम क्या करते हैं जब उसको अंदर उसे पैक करने में यूज़ करते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो इट इज़ एविडेंट दैट सिंस अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस, ओके, दिस पैकेट ऑल्सो हैज़ 6 फेसेस. क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6. वी कैन से दैट अ नेट ऑफ अ क्यूबिकल पैकेट कैन बी क्रिएटेड बाय प्लेसिंग टुगेदर 6 स्क्वायर. But these square have to be placed in a certain special way, otherwise we won't be able to put them together to form a cube. Okay, हमें उसे क्या उसका कुछ एक पैटर्न होता है, उसी के ऊपर हम उसको उस नेट को बना सकते हैं. अदरवाइज हम अगर उसे कुछ अलग ढंग से बनाएंगे तो वो हमारा क्यूबिकल शेप और क्यूबॉइडिकल शेप नहीं आएगा. Okay, understand. So any solid have some net, okay, specified net, understand. Now see, जिस टाइप से हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है इसका नेट कैसा होगा. तो अगर आपको इसका नेट बनाना है, इसका नेट किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा कुछ. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी how to find 4 net. There are 2 correct net among them to make a tetrahedron. See if you can work out which net will make a tetrahedron. Okay, so see, identify the net which can be used to make cube. अब हमको यहाँ पर देखना है इसमें से कौन सा नेट ऐसा है जिससे हमारा क्यूब बनेगा. क्या फर्स्ट वाला नेट से हमारा क्यूब बन रहा है. सो हाउ कैन यू decide which net is possible or which net is not possible. So first of all you have to do कट इट डाउन. आपको इसको कट करना है जैसा यहाँ पर नेट दिया हुआ उस टाइप से कट करके आपको क्या करना है, उसका बॉक्स बना कर देखना है क्या बॉक्स बन रहा है. सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रॉम क्यूब. आप इसका ये सेकेंड वाला है, जो थर्ड वाला है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इनसे तो क्यूब बन जाएगा. बट फर्स्ट वाले से पॉसिबल नहीं है, सिक्स्थ वाले से भी पॉसिबल नहीं है. ओके, कट आउट कॉपी ऑफ द नेट एंड ट्राई इट. आपको सबकी ट्राई करके देखना है. ओके, अंडरस्टैंड. डाइस आर क्यूब विथ डॉट ऑन ईच फेसेस. अपोजिट फेस ऑफ अ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट ऑन देम. जो भी अपोजिट डॉट है उसको मिला करके उसके हमेशा 7 डॉट होते हैं. 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा. 4 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, 3. 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा. ओके, अंडरस्टैंड. सो हियर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस. द नंबर ऑफ इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट इन दैट बॉक्स. सो आपको क्या करना है, आपको उसका राइट क्यूब बनाना है. ओके, अंडरस्टैंड. सो सेकेंड वाले में जो राइट क्यूब होगा वो आपको बना करके आपको नंबर्स पुट करने हैं इसमें. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. कैन दिस बी अ नेट ऑफ
फॉर अ डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या ये नेट हो सकता है डाई का? सो यू कैन राइट इट नो, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट फेस विल हैव 1 and 4। हमारा 1 का अपोजिट फेस क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड? हम 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए? ऑलवेज 6। ओके स्टूडेंट, understand? And another pair of opposite face will have 3 and 6 on them, whose total is not 7. Understand? So this way you can complete question number 3 also. Now question number 4. Here is an incomplete net for making a cube. Complete it in a least 2 different way. कोई भी 2 वे में आपको कंप्लीट करना है। Remember that a cube has 6 faces. How many are there in the net here? Give 2 separate diagram if you like. आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा कौन कौन से उसके क्यूब के हो सकते हैं नेट। आपको उसमें से कोई सा एक बना देना, कोई से 2 बनाने हैं। इफ़ यू लाइक यू मे यूज़ अ स्क्वायर शीट फॉर इजी मैनिपुलेशन। आप कोई भी स्क्वायर शीट में इस टाइप से काट करके आप उसे कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? सो there are 3 faces is given, so you can draw another 3 faces. Okay, now match the net with appropriate solid. So आपको मैच करना है नेट को appropriate solid से। ओके, फर्स्ट वाला जो ए वाला है वो कौन सा नेट दिख रहा है आपको? ए वाले के साथ में आप बना सकते हैं, दिस इज योर नेट। सिलेंडर का नेट ये दिख रहा है। ओके, एंड टेट्राहेड्रॉन का ये दिख रहा है। अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन मैच द फॉलोइंग। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ playing this game. What is the game? See here, you can you and your friends sit back to back. One of you read out a net to make 3D shape, while the other attempt to copy it and sketch or build the described 3D shape. Drawing solid on a flat surface. हम किस टाइप से solid को draw कर सकते हैं flat surface पर? So see here, दिस पेपर जो आपको यहाँ पर स्क्वायर पेपर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? इस पेपर पर आप अगर किसी सॉलिड को बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अगर कोई सॉलिड शेप सी स्क्वायर तो हम सिंपली बना देते हैं, बट इफ़ यू वांट टू मेक अ सॉलिड शेप देन व्हाट कैन यू डू हियर? सी, दिस वे यू कैन मेक अ सॉलिड। अंडरस्टैंड? ओके, so see here how to make a solid. In the sketch above, did you note the following? The size of the front face and its opposite are same, and the edges, which are all equal in cube, appear so in the sketch, though the actual measure of edge are not taken so. Okay, so what is the this paper is called isometric paper. इस टाइप का जो स्क्वायर पेपर होता है, और आपकी बुक में जो सबसे पीछे एक पेपर दिया हुआ है डॉटेड पेपर, जो आपका बुक का लास्ट पेज है, दैट इज डॉटेड पेपर, दैट इज आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर। ओके, एंड दिस इज आइसोमेट्रिक स्क्वायर पेपर। ओके, लास्ट पेज जो आंसर शीट के पीछे की साइड जो एक पेपर दिया है, दैट इज आपका आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर, वो आपका आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर है। ओके, अंडरस्टैंड? एंड इस टाइप से स्क्वायर पेपर जो आता है वो भी आइसोमेट्रिक पेपर ही कहलाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक शीट ऑल्सो। इफ आई वी टॉक अबाउट अ कोन हैज़ 1 वर्टेक्स। कोन का एक वर्टेक्स होता है, 1 कर्व्ड एज होती है, एंड 1 कर्व्स फेस एंड 1 फ्लैट सर्कुलर फेस। ओके, स्पेयर हैज़ नो वर्टेक्स, नो एज और अ कर्व सरफेस। ओनली स्पेयर में मीन्स बॉल में खाली क्या रहती है? कर्व सरफेस रहती है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट ट्रायंगुलर पिरामिड, अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ 4 वर्टेक्स, 4 एज एंड 6 एजेस। Okay, 4 vertices, 4 faces and 6 edges. Okay, now square pyramid की अगर हम बात करें, square pyramid has 5 faces, 5 vertices and 8 edges. Okay, a figure whose face are polygon, that is triangle, quadrilateral, etc., is called a polyhedron.
polyhedron. Okay, cylinder and cone are not polyhedron as their faces are not polygon. Okay, understand? So we will learn what is polyhedron. polyhedron का मतलब क्या हुआ, जिसका फेस अगर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, कोई पॉलीगॉन होता है, मीन्स आपको दिख रहा है अगर वो रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है, ओके, एनी पॉलीगॉन, सो वी कैन से दैट इज पॉलीहेड्रॉन. Okay, understand? And net for building 3D shapes, we know that how to build a net. हमने yesterday लिखा था how to build a net for any 3D shape. Okay, a net of a 3-dimensional 3D figure is a shape that can be cut out of a plain pieces of paper and folding to make 3-dimensional shape. Okay, understand? So we can make the net also for 3-dimensional shape. Okay, now it's very important topic viewing different section of a solid. Now let us see an object which is in 3D can be viewed in different way. One way to view an object is by cutting or slicing. कोई भी ऑब्जेक्ट है जब आप उसे कट करते हैं तो वो किस शेप में दिखेगा. हियर इज अ लोफ, मीन्स ब्रेड आपने देखी है, इट इज लाइक अ क्यूबॉइड विथ अ स्क्वायर फेस. You slice it with a knife when you give a vertical cut. आप जब उसे वर्टिकल कट देते हैं, सो यू कैन गेट सेवरल पीसेस एज शोन इन द फिगर. आपको ब्रेड तो सबने देखी होगी, आपको वो इस टाइप से दिखती है कुछ. ओके, जब आप उसे वर्टिकल मीन्स आप किस शेप में काट रहे हैं, आप उसे इस टाइप से काट रहे हैं, डेट इज़ वर्टिकल. ओके, सो आपको किस टाइप से दिख रही है वो is shown in the figure. Each face of the piece of is a square. Okay, we call this face a cross section of the whole bread. हम इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. The cross section is nearly a square in this case. हमको ये किस शेप में दिख रहा है, स्क्वायर के शेप में दिख रहा है. Beware if your cut is not vertical, you may get a different cross section. Think about it. The boundary of the cross section you obtain is a plain curve. Do you notice it? अगर हम इसे horizontally काटेंगे, अगर हम इस टाइप से काटेंगे तो आपको कौन से पीसेस मिलेंगे, अगर आपको रेक्टेंगुलर पीस मिलेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे when you cut the anything, so it will be differently. Okay, have you noticed cross section of some vegetable when they are cut for the purpose of cooking in the kitchen? Observe the various slice and get aware of the shape that result of as a cross section. आपने देखा होगा कई जगहों पर जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो वहाँ प्याज, ओनियन हो गया, गाजर हो गई, ककड़ी हो गई, इन सबको किस अलग अलग शेप में काट के रखा जाता है. ओके, सो उनका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होगा. ओके, नाउ मेक क्ले मोड ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एंड मेक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट थ्रो रफ स्केच of the cross section you obtain. Name them wherever you can. आपके पास अगर क्ले है तो क्ले से आप डिफरेंट क्या बना सकते हैं, डिफरेंट सॉलिड शेप बना करके उसे वर्टिकली मीन्स आप उसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट करके देखिए आपको कौन सा शेप मिलता है, विच शेप यू कैन गेट. ओके, सो राइट इट whatever you get. Okay, what cross section do you get when you give a vertical cut or horizontal cut to the following solid? A brick को जब आप वर्टिकली कट करोगे जब आप ब्रिक आपका इस शेप में होता है कुछ. ओके, आप उसे वर्टिकली कट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है. ओके, जब आप ब्रिक को हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, रेक्टेंगल शेप मिलेगा. Okay, understand? So
और राउंड एप्पल, अगर आप राउंड एप्पल को आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, और डाइस, और सर्कुलर पाइप एंड आइसक्रीम कोन। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है 15.3 का। ओके स्टूडेंट, नाउ अनदर वे इज बाय शेडो प्लेइंग। शेडो प्लेइंग, आपने शेडो देखा होगा, जब कभी भी आप देखते हो, शेडो आर अ गुड वे टू इलिस्ट्रेट हाउ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड इन 2 डायमेंशनल। हम कोई भी 3 डायमेंशनल शेप को कैसे 2 डायमेंशन में देख सकते हैं। सो शेडो इज द गुड वे to showing any 3 dimensional object in 2 dimension. Okay, understand? Have you seen a shadow play? It is a form of entertainment using solid articulated figure in front of an illuminated backdrop to create the illusion of moving image. Okay, it makes some indirect use of idea in mathematics. Okay, you will need a source of light and a few solid shape for the activity. If you have an overhead projector, place the solid under the lamp and do this इन्वेस्टिगेशन। ओके, आप इस टाइप से कर सकते हैं। एंड कीप अ टॉर्च लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ कोन एंड व्हाट टाइप ऑफ शेडो डस इट कॉस्ट ऑन द स्क्रीन। आप कोन एक रख करके उसके फ्रंट में आप टॉर्च जला करके देख सकते हैं आपको उसके बैक साइड में क्या दिख रहा है। द सॉलिड इज 3 डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द शेडो। अगर सॉलिड 3 डायमेंशन है तो शेडो का डायमेंशन क्या होगा, ऑब्वियसली 2 डायमेंशन। ओके, इफ इंस्टेड ऑफ अ कोन यू प्लेस अ क्यूब इन द अबो गेम, व्हाट टाइप ऑफ शेडो विल यू गेट। आप किस टाइप की शेडो उसमें देखेंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, खाली आपको टॉर्च जलाकर देखना है। जब आप उसे, अगर कोई बॉल है आपके पास में, बॉल तो सबके पास में होती है, अगर उस बॉल को आप बॉल पर ऊपर से अगर लाइट डालेंगे तो आपको किस टाइप से दिख रही है, वो कौन सा शेडो दिख रहा है उसका। ओके, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबोव द फॉलोइंग सॉलिड, नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन इन ईच केस। आपको हर एक उसमें केस में आपको शेडो कौन सा मिल रहा है। सी, अगर आप वो देख रहे हैं, एक कप रखा हुआ है, कप को अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो मॉर्निंग में आपको किस टाइप से दिख रहा है, एंड इवनिंग में आपको किस टाइप से दिखेगा। ओके, अंडरस्टैंड। सो आपको क्या देखना है, स्टडी द शेडो इन रिलेशन टू द पोजिशन ऑफ सन एंड द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, जो पहले के ज़माने के लोग थे बेटा, वो शेडो देख करके ही पता कर लेते थे टाइम क्या हुआ है। ओके, सो टाइम देखने के लिए पहले वो अपनी शेडो का यूज़ करते थे, बिकॉज सन का जो सूरज की रोशनी जहाँ पड़ रही है उससे वो शेडो कहाँ बन रही है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, उससे वो टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे। ओके, अंडरस्टैंड। सो अटेम्प्ट टू गिव अ रफ स्केच ऑफ द शेडो। आपको ये वाला क्वेश्चन जो देखना है और आपको बताना है कि आप जब इस टाइप से किसी थिंग पर आप ऊपर से अगर लाइट डाल रहे हैं तो उसका शेडो किस टाइप से बन रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकेंड इज here are the shadow of some 3D object when seen under the lamp के नीचे देखा था of an object projector, identify the solid that much make each shadow, therefore मे बी मल्टीपल आंसर ऑफ फॉर दिस। बहुत सारे आंसर भी हो सकते हैं इसके। आपके पास में अगर सर्कल दिख रहा है तो वो सर्कल किसका हो सकता है वो आपको बताना है, स्क्वायर और ट्रायंगल या रेक्टेंगल आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, अंडरस्टैंड। सो यू कैन आइडेंटिफाई डेट एंड एग्जामाइन द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है। द क्यूब कैन कॉस्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या क्यूब शेडो फॉर्म कर सकता है रेक्टेंगल के फॉर्म में, आपको ये बताना है। अंडरस्टैंड। सो क्यूब कैन फॉर्म द शेडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। सो you can give your answer. So you can write it, yes, cube can find the shadow in the shape of rectangle. Okay, the given statement is true.
Now the cube can cast a shadow in the shape of a hexagon. So this statement is wrong or false. So it is not true. Okay, understand? So this way you can complete chapter 15.3 also. Okay, now a third way is by looking at it from certain angle to get different view. So आपको इस टाइप से कोई अगर फिगर है तो आप उसे जब देखते हैं फ्रंट व्यू कैसा होगा उसका, साइड व्यू कैसा होगा, टॉप व्यू कैसा होगा। जब आप एक हर्ट को देख रहे हैं तो सी अगर आप उसका फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट में आपको क्या दिख रहा है, फ्रंट में आपको उसका व्यू दिखेगा इस टाइप से, ओनली दिस व्यू यू कैन सी, मीन्स एक पेंटागन। ओके, आपको इस टाइप का व्यू दिखेगा फ्रंट में। अब अगर आप उसे साइड से देख रहे हैं तो साइड का व्यू उसका किस टाइप से रहेगा, सी साइड का व्यू में आपको ये भी दिखेगा साथ में। ओके, दिस इज द साइड व्यू। नाउ इफ यू सी ऑन टॉप, सो आपको टॉप व्यू कैसा दिखेगा, सी हियर आपको टॉप व्यू भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो जो यहाँ पर फ्रंट व्यू आपको दिस इज द फ्रंट व्यू। ओके, नाउ दिस इज आवर साइड व्यू, दिस इज आवर टॉप व्यू। ओके, सो बिल्डिंग के व्यू हम जब अलग अलग तरीके से देखेंगे, अलग अलग एंगल से देखते हैं, सो वी कैन सी द डिफरेंट वे फॉर द व्यू। ओके, यू कुड डू द फिगर मेड बाय ज्वाइनिंग क्यूब। आप इसको क्यूब को ज्वाइन करके भी बना सकते हैं फिगर को। ओके, अंडरस्टैंड, फॉर ईच सॉलिड द 3 व्यू आर गिवन। हर एक सॉलिड के लिए आपको 3 व्यू दिए हुए हैं। आपको टॉप व्यू कैसा दिख रहा है इसका, सी हियर टॉप व्यू आपको ये वाला दिख रहा है, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस सॉलिड। साइड व्यू आपका ये है एंड फ्रंट व्यू अगेन ये है। ओके, अंडरस्टैंड। अब अगर आपको सेकंड वाले पोर्शन में देखना है, सेकंड वाले का देख रहे हैं अगर आप, तो टॉप व्यू इसका कौन सा होगा, टॉप व्यू जब आपको सबसे ऊपर का दिखता है, सो विच इज़ द टॉप व्यू, सो टॉप व्यू इज दिस। ओके, जब आप ऊपर से देख रहे हैं। साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, ओनली ये दो पोर्शन दिखेंगे। एंड फ्रंट व्यू जब आप सामने से देख रहे हैं तो आपको इस टाइप से दिखेगा कुछ। ओके, अंडरस्टैंड। सो दिस वे यू कैन राइट द टॉप व्यू, साइड व्यू एंड front view. Okay, so here in this chapter we learn the circle, the square, the rectangle and the quadrilateral, and the triangle are example of plane figure. The cube, the cuboid and the sphere, the cylinder, the cone and the pyramid are the example of solid shapes. Okay, when plane figure are 2-dimensional means that is called 2D, and the solid shapes are of 3-dimensional, we can say that is 3D. Okay, the corner of solid shape are called its vertices. The line segment of its skeleton are its edges and its flat surface are its face. Okay, a net is a skeleton outline of a solid that can be folded to make it. The same solid can have several type of net. Okay, now solid shape can be drawn on a flat surface. Realistically, we call these 2D representation of a 3D shapes. Okay, 2 type of skeleton of solid are possible, oblique sketch and isometric sketch. Okay, understand, visualizing solid shape is a very useful skill. You should be able to see hidden part of the solid shapes. ओके, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वे, मतलब आप उसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू से जब देखते हैं तो आपको उसका व्यू कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज our chapter visualizing solid shape. We have completed this chapter today and you have to complete all the exercise in your notebook. Okay, this chapter is useful to see हाउ टू सी द सॉलिड. अगर हम कोई सॉलिड शेप को देख रहे हैं तो उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू किस टाइप से दिखेगा. ओके, अंडरस्टैंड. और व्हाट इज़ 3D शेप एंड व्हाट इज़ 2D शेप. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सॉलिड, 2D and 3D shapes. Okay, 2D shapes means that have only length and breadth, and 3D shape means that have length, breadth and height also.
Okay student, so complete this chapter. Okay, have a good day.